2 years ago, I made this video. It was something so personal, but that video worked like magic for me. It healed some part of me. And तब से I have been making more and more videos, and most of my work are pieces of my life. Because its focus is on seeking answers of so many questions and doubts about my life and how I live it. And मैं हमेशा open रहा हूँ with what I'm going through and कैसे मैं उसको deal कर रहा हूँ. So this video, I'm gonna take you on the journey. And this is not just any other travel video. ये वीडियो ज़्यादा फोकस करता है ह्यूमन इमोशंस एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी. एंड कुछ चीज़ें बहुत टफ होती है टू एड्रेस बीइंग अ मैन, एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो टुक अ ईयर टू कम आउट. But finally, I'm making this video because I feel like some part of me have healed and some are still in the progress. But I want to make this video to showcase that being fragile and also intense with your emotions कितना important है, especially if you are man. So I got an opportunity to make a travel film and they took me to Kashmir. So even before this journey started, I was not feeling anything. Not excitement, not butterflies, कुछ नहीं. But as soon as we were entering Kashmir, we were welcomed with so much fog. हाँ जी, आज फर्स्ट डे है कश्मीर में एंड लुक एट दिस वेदर यार. मतलब चारों तरफ फुल फॉग एंड Whenever we go through something in life, हमारा नेचुरल टेंडेंसी होता है टू शट इट डाउन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ मेरे को दिखता है कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज सम अनईजीनेस इन माई हार्ट, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग टू नो कि मेरे में क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, वॉट वी डू इज ए आइदर वी इग्नोर इट कम्प्लीटली और बी इट्स वी फील लाइक ये सिर्फ एक मोमेंट की चीज़ है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. हम हमारी लाइफ को कम्प्लीटली शट करना चाहते हैं फ्रॉम एनी प्रॉब्लम्स, मिजरी और इवन डिप्रेशन. क्यों करते हैं हम ऐसा? वाई डोंट वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ? वाई वी वॉन्ट टू जस्ट लिव ऑन द सर्फेस लेवल? इट्स फनी बिकॉज ऑन द सर्फेस वी लाइक टू थिंक ऑफ अवर सेल्फ इन सिंपल टर्म्स. We label ourselves like introvert, extrovert, creative, logical, happy, sad. We categorize our feelings into these boxes. But जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, and the more I think about it, the more I realize that human beings are more than just a word, simple. We are a mess of contradictions, full of emotions, experiences, and memories that never seem to align the way we expect them to. अगर आप मेरी तरह हो ना, देन यू विल श्योरली रिलेट टू दिस कि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम एंड एनर्जी गोज ऑन सीकिंग आंसर्स ऑफ सो मैनी क्वेश्चंस, डाउट्स और इवन प्रॉब्लम्स, है ना. एंड लेटली मेरे को समझ आ रहा है कि लाइक हाउ मच आई एम बिकमिंग इम्पेशेंट इन दिस होल प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आंसर्स. मैं अपनी लाइफ में पहली बार स्नो देख रहा था, बट ये रिएक्शन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरे से. आई थॉट आई विल बी सो मच हैप्पी, बट कुछ तो मिसिंग था. सो जब आप यहाँ पे आते हो, यू हैव टू टेक 2 टिकट्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2. ना मेरे पास सिर्फ फेज़ 1 की टिकट थी, एंड जिनके साथ मैं आया था, मोस्ट ऑफ देम वेंट टू फेज़ 2, एंड मैं फेज़ 1 पे अकेला था. बट आई गॉट सम टाइम टू सिट बाय माई सेल्फ. I was sitting alone, and it's in these quiet moments that we often find the deepest connection with ourselves. And मैं सोच रहा था that we are constantly evolving, right? And कभी-कभी बहुत ही draining है ये process. But at the same time, we are also stuck in this loop of trying to figure out ourselves. Like मेरे को समझ आ रहा है कि मैं भी कहीं ना कहीं happiness को chase कर रहा हूँ. If one problem will be solved, then I will be happy. But मैंने वो problem को fully experience ही नहीं किया है. I have not lived with that problem. And if I have not lived with that, तो आंसर मेरे को कैसे मिलेंगे?
देयर इज सम कॉम्प्लेक्सिटी इन एवरी ह्यूमन बीइंग एंड उसके लिए मैंने कुछ लिखा है एंड हियर इट गोज. वी ऑल आर somehow a painting and I want to call this painting a complexity. At first glance you understand what the painting is about. Maybe you love the colors, texture, but the more you stare, the more you are not able to understand it. There is so much complexity, intensity. Slowly, you start to understand there is much more than colors and texture. There is darkness, there is trauma, there are stories, there are experiences. You know, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं दैट आर अनसेबल. मैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाऊंगा. इट फील्स लाइक दिस एक्सपीरियंसेस हैपन इन अ स्पेस जहाँ सिर्फ मैं एग्जिस्ट करता हूँ और कोई आ ही नहीं सकता. I've always found very hard to connect with the people, not the surface level पे but much more deeper level पे. एक तो past unhealed trauma है थोड़ा, but second is like I'm very intense with my emotions, है ना? And being a man that is so much intense with his emotions and sensitivity, उस पर और difficult हो जाता है to make friendship. I always had a fear of rejection. It wasn't just a childhood thing, but it changed the perspective about how I saw friendship. It made me shut down every time someone tried to get close. And because of this, I was not able to experience a true connection from growing and learning with others. And the more I shut myself down, the more I felt like I was missing out on something. Like ये ट्रिप पे मैं बहुत लोगों के साथ आया था, but I connected most with these two guys, Ganesh and Mrinal. Starting में, though it was tough for me, but I'm learning to open up, and slowly we became really good friends. On the last few days of the trip, हम एक लोकल अंकल के घर पे गए थे एंड उन्होंने हमारे लिए ऑथेंटिक खाना बनाया था एंड मोस्टली सब नॉन वेज था बट स्टिल आई एन्जॉयड द ऑथेंटिक कहवा वहाँ का. इट वॉज सो गुड. फाइनली द ट्रिप वॉज कमिंग टू एन एंड एंड सो इज दिस वीडियो. सो व्हाट्स अ फाइनल कंक्लूजन? आई फील एज अ ह्यूमन वी आर फेस्ड विद आवर ओन कॉम्प्लेक्सिटी. हमारे अंदर से एक अर्ज आती है टू सिंप्लीफाई इट, टू अंडरस्टैंड इट, बट द मोर विल ट्राई टू सिंप्लीफाई द मोर वी आर मिसिंग द पॉइंट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन. कॉम्प्लेक्सिटी ही हमें ह्यूमन बनाती है. मैं काफ़ी टाइम तक सोचता था दैट दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ माई एनिमी एंड मेरे में कुछ प्रॉब्लम है एंड आई नीड टू सी थेरेपिस्ट. बट फनी चीज़ यही है कि लाइक व्हेन आई मेक माई माइंड टू सीक हेल्प तभी मेरे को पता नहीं कहाँ से आंसर्स मिल जाते हैं. मे बी आई हैव लिव्ड विद दैट क्वेश्चन सो मच, पता नहीं. बट इफ़ यू फील लाइक कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अ बैड थिंग, आई completely get it because कभी कभी it can drain you so much, but I feel complexity is the beautiful thing. Like मैं 25 का हूँ एंड मैंने अभी तक अपने आप को बस एक लेबल देता था हमेशा कि आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट आई फील वी आर मच मोर देन जस्ट अ लेबल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश हो या सैड हो, then what we say to ourselves like I'm happy, I'm sad, right? But कितनी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक इमोशन एक मोमेंट पे फील करते हैं? मेरे को तो याद नहीं है. लाइक वेन एवर आई एम हैप्पी उसके साथ एक और इमोशंस अटैच्ड होता ही है. मे बी इट्स एंक्शियस, मे बी इट कन्फ्यूज्ड, बट इट्स नॉट जस्ट वन इमोशंस, राइट?
सो आई हैव रियलाइज कि लाइक एक इमोशंस एक बबल के अंदर रह ही नहीं सकता. देयर विल बी ऑलवेज क्लैश हैपनिंग बिटवीन द इमोशंस एंड इट्स ओके. हमको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है कि आई एम जस्ट हैप्पी तो बस हैप्पी फील करूँ. इट्स ओके टू हैव दिस क्लैश ऑफ इमोशंस हैपनिंग इनसाइड अवर सेल्फ because we are not one dimensional. We are mix of feelings, emotions, experiences, contradictions, and this all happening in one moment.